नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल डिको डीटीजी में। और आज हम फिर से एक बार देखने जा रहे हैं ईएसआईसी स्कीम डिटेल्स में। ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कर्मचारी राज्य बीमा योजना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ईएसआईसी स्कीम एंड इंट्रोडक्शन। The Employee State Insurance Scheme is an integrated measure of social insurance embodied in the Employees State Insurance Act and is designated to accomplish the task of protecting employees as defined in the Employees State Insurance Act 1948 against the impact of contingencies of sickness, maternity, disablement, and death due to employment injury and to provide medical care to insured persons and their families. मतलब कि ये ESIC एक्ट 1948 के अंदर एक बेनिफिट है वर्कर्स के लिए, जिसमें उनका जो इमरजेंसी में कंडीशंस होती हैं जैसे कि सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, किसी टाइप की चोट लग गई, टूट फूट, डेथ, इन केसेस में एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान होने वाले इन अचानक दुर्घटनाओं से उनको बचाने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत उनका मेडिकल केयर फ्री में होता है और उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। The ESI Act is applicable to all non-seasonal factories employing 10 or more persons. ये हर उस non-seasonal factories में applicable है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा persons workers employed हैं. The state governments have extended the coverage under Section 105 of the Act to shops, hotels, restaurants, cinemas, including preview theatres, road motor transport undertakings, newspaper establishments, private medical institutions, educational institutions, and to contract and casual employees of municipal corporation, municipal bodies employing 10 or more persons in the certain states, union territories where state government is the appropriate government. जहाँ पे भी appropriate government स्टेट गवर्नमेंट है तो उसने सेक्शन 105 जो है ESIC एक्ट 1948 के अंतर्गत उसने अपने इस दायरे को बढ़ाया है, ESIC के कवरेज को बढ़ाया है और उसमें शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा चीज़ों को उसमें अंतर्गत लाते हुए उनके ऊपर भी अप्लीकेबल है ESIC एक्ट। The central government has extended the coverage under Section 105 to shops, hotels, restaurants, road motor transport establishments, cinemas, including the preview theatres, newspaper establishments engaged in insurance business, non-banking financial companies, port trust, airport authorities, warehousing establishments employing 20 or more persons where central government is the appropriate government. और जहाँ appropriate government central government है वो इन निम्नलिखित एरियाज़ को इसके अंदर लाते हुए ESIC को एक्सटेंड कर रही है, उसका दायरा बढ़ा रही है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। द एग्जिस्टिंग वेज लिमिट फॉर कवरेज अंडर द एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2017 इज़ 21,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ इन द केस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये एक्ट जो था 1948 का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो उसके अंतर्गत जो है जो वेज सीलिंग है वो अभी 1/1/2017 से जो वेज सीलिंग है उसकी वो 21,000 पर मंथ है। मतलब कि जिस वर्कर की वेजेस 21,000 से ज़्यादा है वो ESI के दायरे में नहीं आता है, और जो डिसेबल वर्कर है उसकी अगर सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो वो भी ESI के दायरे में नहीं आता है, और उससे दूसरे टाइप के इंश्योरेंस के थ्रू वो बेनिफिट ले सकता है, लेकिन ESIC के अंतर्गत वो नहीं आ सकता अगर उसका सैलरी 21,000 है या फिर डिसेबल पर्सन का 25,000 से ज़्यादा है। तो The ESI scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employer is 3.25% of the wages payable to employees. The employee's contribution is at the rate of 0.75% of the wages payable to him or her. Employees earning up to 176 a day as a daily wages are exempted from payment of their share of contribution. क्या कहना चाह रहा है इसमें कि ESI स्कीम में जो बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जाते हैं इसका फाइनेंस, इसका जो पैसा है वो कहाँ से आता है, वो एम्प्लॉयर मतलब कि फैक्ट्री या कोई एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉय वर्कर्स इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ESI के बेनिफिट्स दिए जाते हैं वर्कर्स को। तो इसमें जो फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट है वो 3.25% ऑफ द वर्कर वेज पर मंथ, जो भी किसी वर्कर का वेजेस है पर मंथ उसका 3.25% वो अपने से अलग से उसमें कंट्रीब्यूट करता है ESI फंड में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने प्रति माह सैलरी के वेजेस के
0.75% उससे कटवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं और उसमें ESIC में जमा करते हैं। तो टोटल 4% जाता है पर मंथ पर वर्कर। ठीक है। और जो वर्कर जिसकी डेली वेजेस पे है और उसकी आमदनी 176 रुपये पर डे से कम है या 176 रुपये है, वो जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन है 0.75% उससे वो नहीं भरना है ESIC में। ठीक है। तो द मेन बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर ESI स्कीम्स आर सिकनेस बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, dependent benefits, maternity benefits, and medical benefits. Besides, other benefits being provided to beneficiaries are unemployment allowances under RGSKY, confinement expenses, funeral expenses, vocation rehabilitation, skill upgradation training, and compensation in case of unemployment under in Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ABVKY. आगे देखते हैं ESIC कवरेज ओवर ईयर्स। ESIC का दायरा सालों में कैसे बढ़ा देखते हैं। इन द बिगनिंग द ESI स्कीम्स वॉज इम्प्लीमेंटेड एट जस्ट 2 इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन द कंट्री इन 1952, नेमली कानपुर एंड दिल्ली। मतलब 1952 में जब ये शुरू हुआ था ESIC स्कीम, तो ये सिर्फ कानपुर और दिल्ली में ही इम्प्लीमेंटेड था। There was no looking back since then in terms of its geographic reach and demographic coverage. Keeping pace with the progress of industrialization, ESI scheme stands implemented in 661 districts in 36 states and union territories of the country. Presently, the Act applies to over 15.94 lakhs factories and the establishments across the country, benefiting over 3.42 crores insured person family units. The total beneficiaries stands at over 13.3 crores. Infrastructure. Ever since its inception in 1952, the infrastructural network of the scheme has kept expanding to meet the social security requirements of an ever-increasing worker population. ESI Corporation has so far set up 161 hospitals, ESI hospitals 54 and ESIS hospitals 107 for inpatient services. Primary and outpatient medical services are provided through a network of about 1574, 387 ESI dispensaries, Ayush units and 887 panel clinics. Primary medical services and cash benefits are also provided at one place through 104 dispensaries cum branch offices, जिसको हम DCBOs भी बोलते हैं। The corporation has also set up 7 occupational disease centers, one each at Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Alwar, Patna, Indore, for early detection and treatment of occupational diseases prevalent amongst workers employed in hazardous industries. Apart from this, ESIC is also running 8 medical colleges and hospitals, 2 dental colleges, 2 nursing colleges, and 1 paramedical college across the country. For payment of cash benefits, the corporation operates through a network of over 604 branch offices whose functioning is supervised by 64 regional sub-regional offices. ESIC a complete social security organization for India's workforce. अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ESIC एक्ट 1948, तो अभी मतलब नए जो कोड्स आए हैं उसमें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंतर्गत ESIC बेनिफिट्स भी कवर होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द बेनिफिट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ ESI स्कीम आर medical benefit. ESIC provides reasonable medical care to insured persons and their dependents family members from the day of joining insurable employment. The range of medical services being provided covers preventive, promotive, curative, and rehabilitative services. For this, the insured has to be treated by showing his identity in ESI dispensary and in hospitals. Sickness benefit. Payment of sickness benefit is given to the insured person at the rate of 70% of the average daily wages for 91 days in 2 consecutive benefit period. A minimum contribution of 78 days should have been paid in relevant contribution period.
Maternity benefit. It is paid up to 26 weeks in case of confinement, up to 2 surviving children, 12 weeks for more than 2 surviving children, up to 12 weeks to commissioning adopting mother, up to 6 weeks in case of miscarriage, further extendable by 1 month on medical advice in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, miscarriage, subject to payment of contribution of 70 days in two preceding contribution periods. Disablement benefit. Disablement benefit is given to the insured person who is incapacitated due to injury. In cases of temporary disability and full permanent disability, the average daily wages is paid at the rate of 90%, and in the case of permanent partial disability, it is given in proportion to the loss incurred in the ability to earn. Dependence benefit. On the death of the insured person due to employment injury, the monthly payment at the rate of 90% of the average daily wages shareable between the dependents in the fixed proportion is given. This benefit is given to the widow of an insured person for lifelong or remarriage till the completion of the age of 25 years for son, and to the daughters till her marriage. Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ABVKY. In case of unemployment, cash compensation is paid to the insured person for the 90 days at the rate of 50% of wages. For this, the contribution of at least 78 days in one completed contribution period should be paid by the insured person in 12 months immediate period to unemployment. Old age medical care. Old age medical care is provided to the insured person and his or her spouse in the ESI hospitals and dispensaries on retirement after the superannuation age, or by taking retirement under the voluntary retirement plan or pre-retirement, subject to the condition of minimum service of 5 years in insurable employment before the retirement, and the payment of 120 per annum after retirement. Vocational rehabilitation allowance. Disablement doesn't mean complete loss of skill. Payment of actual fee charged or 123 per day in case of disablement due to employment injury as vocational rehabilitation allowance. Rehabilitation allowance. Injury during employment doesn't mean loss of daily livelihood. 100% of average daily wages in case of physical disablement due to employment injury, as long as the person is admitted in the artificial limb center for fixation or repair or replacement of artificial limb. Other benefits: confinement expenses 7500 per confinement where ESI medical facilities are not available. Funeral expenses, actual expenses subject to the maximum 15,000 in cash for funeral of deceased IP insured person. Then sickness benefits. सिकनेस बेनिफिट में तीन होते हैं: सिकनेस बेनिफिट, इनहेंस सिकनेस बेनिफिट एंड एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट. तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इनके लिए जिसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और किस ड्यूरेशन तक मिल सकते हैं, और क्या रेट रहेगा. तो हम इसे डिटेल में समझते हैं. तो सिकनेस बेनिफिट, इसकी कंडीशंस हैं: पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर 78 डेज इन करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड. जिस साल आपको सिकनेस बेनिफिट चाहिए उस साल 78 डेज आपको कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका पेमेंट से. ठीक. देन ड्यूरेशन है अप टू 91 डेज इन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड. मतलब आप 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड में 91 डेज तक का आप सिकनेस बेनिफिट ले सकते हैं. देन रेट क्या मिलेगा? 70% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस. जो डेली वेजेस है, एवरेज डेली वेजेस, उसका 70% आपको दिया जाएगा. इनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट, पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर 78 डेज इन करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड. मतलब सेम ही रहेगा, जो सिकनेस बेनिफिट है वही सेम कंडीशन इसके लिए भी है. देन ड्यूरेशन क्या है? 14 डेज ऑफ ट्यूबिक्टोमी एंड 7 डेज फॉर वेसेक्टोमी एक्सटेंडेबल ऑन मेडिकल एडवाइस. मतलब ट्यूबेक्टोमी के नसबंदी के दौरान 14 दिन का
वेसेक्टोमी में 7 दिन का, और ये एक्सटेंडेबल भी है, मेडिकल एडवाइस के ऊपर मतलब निर्भर करता है कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें जो है आपको जो एवरेज वेजेस है उसका 100% मतलब फुल एवरेज वेज आपको मिलेगी। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट ये किस कंडीशन में दी जाती हैं? फॉर 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिजीजेज, जो गवर्नमेंट ने पहले से प्री डिसाइडेड है कि कौन से 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैं, और उन्हीं कंडीशंस में इसको दिया जाता है। कंटिन्यूस इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 years विथ मिनिमम 156 days कंट्रीब्यूशन इन 4 consecutive कंट्रीब्यूशन पीरियड। 2 साल विथ मिनिमम 156 कंट्रीब्यूशन डेज होने चाहिए आपके, और 4 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में हो सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा जिसमें ये फ़ायदा मिलेगा आपको? 124 दिन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल में आपको 124 दिन आपको ये फ़ायदा दिया जाएगा। दिस मे बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years ऑन मेडिकल एडवाइस, और ये एक्सटेंडेबल है 2 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एडवाइस। इसमें आपको 80% ऑफ एवरेज डेली वेजेस दिए जाएंगे। देन है डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। इसमें आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डिपेंडेंट बेनिफिट। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट में कंडीशन है फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जिस दिन आपका ESIC में आप इंश्योर्ड हो गए, आपका ESIC बन गया, आप उस दिन से टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट के हकदार हो गए हैं। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंजरी में आपका कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ड्यूरेशन क्या होगा? एज लॉन्ग एज टेम्परेरी डिसेबलमेंट लास्ट, जब तक वो डिसेबलमेंट आपका टेम्परेरी वाला रहेगा तब तक आपको मिलेगा। रेट क्या होगा मिलने का? 90% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस अप्रॉक्स, मतलब लगभग आपका जो डेली एवरेज वेजेस है उसका 90% आपको दिया जाएगा, जब तक आपका वो डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट सही नहीं हो जाता। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ये भी सेम कंडीशन है, और इस केस में आपको पूरे जीवन पर्यंत आपको ये बेनिफिट मिलता ही रहेगा। और ये मिलता है आपको, रेट क्या है? 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेस और इन प्रोपोर्शन टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। या तो ये 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेस मिलेगा, या फिर ये उस प्रोपोर्शन में मिलेगा जो अर्निंग कैपेसिटी थी आपकी, उसका जो लॉस है उसके प्रोपोर्शन में देखा जाएगा कि आपको कितना दिया जाना चाहिए। देन है डिपेंडेंट्स बेनिफिट, जो आप पे डिपेंडेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो ये इसका जो कंडीशन है वो भी फ्रॉम डे 1 ऑफ द एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट पेड फॉर डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। और ये किस केस में दिया जाता है? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, वर्कर की डेथ हो गई, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उस केस में बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और ये बेनिफिट जो है शुरू हो जाता है जैसे ही आप कोई भी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है? फॉर लाइफ टू द विडो, मतलब जो उनकी वाइफ होगी, या फिर है ना उनको जो है जीवन पर्यंत दिया जाएगा, या फिर जब तक वो दोबारा से शादी ना कर लें तब तक उन्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और उनके जो बच्चे हैं, डिपेंडेंट जो सन थे, उनको दो बच्चों तक अलाउड है, और उन बच्चों की जो भी एज होगी वहाँ से लेकर के 25 साल के जब तक वो नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो डॉटर है उसको उसकी शादी तक बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसका जो रेट होता है वो 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेस होता है, शेयरेबल इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन अमंग ऑल डिपेंडेंट्स। और ये जो है जो 90% लास्ट ऑन वेज है उसका जो है इक्वली वो जो है सारे डिपेंडेंट्स पे शेयर किया जाता है। देन मैटरनिटी बेनिफिट, इसका कंडीशन है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 70 days इन 2 प्रिसाइडिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड्स। ठीक है, 2 पिछले जो कंट्रीब्यूशन पीरियड्स हैं उसमें एटलीस्ट आपका 70 दिनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ESIC में, तभी आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा? इट इज़ पेड अप टू 26 weeks।
इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन दिया जाता है, 12 वीक फॉर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। अगर आपके मतलब पहला बच्चा है तो भी आपको 26 वीक्स यानी कि 6 महीने दिया जाएगा। अगर आपका दूसरा बच्चा है तब भी आपको 6 मंथ्स का दिया जाएगा। अगर आपका 2 बच्चों से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 12 वीक्स का ही बेनिफिट ड्यूरेशन मिलेगा। और अप टू 12 वीक्स टू कमीशनिंग एडप्टिंग मदर, अप टू 6 वीक्स इन केस ऑफ मिसकैरेज। अगर आपको मिसकैरेज होता है तो 6 वीक्स का आपको मिलेगा। फर्दर एक्सटेंडेबल बाई 1 मंथ ऑन मेडिकल एडवाइस इन केस ऑफ सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी। और हर केस में ये 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है अगर मेडिकल एडवाइस है तो, ड्यू टू सिकनेस अराइजिंग ऑफ प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज। इसमें आपका एवरेज डेली वेजेस का 100% आपको मिलता है, दिया जाता है। मेडिकल बेनिफिट्स, रीजनेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड फैमिली फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं फैमिली और उस वर्कर को, उसके डिपेंडेंट्स को, जिस दिन से वो एम्प्लॉय होता है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, उस दिन से ही ये बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं। रीजनेबल मेडिकल केयर टिल ही और शी रिमेन्स इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो डेली उसका तबीयत ख़राब हो रही है किसी वर्कर की या उसके फैमिली मेम्बर की, तो उसको जो है मेडिकल केयर मिलता है ESIC लिंक्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें। देन अदर बेनिफिट्स में पहला है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसकी कंडीशन है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैश कंपनसेशन इज पेड टू द इंश्योर्ड पर्सन subject to 1 year of service completed by insured person and contribution for not less than 78 days in one contribution period in 12 months immediately preceding to unemployment। पर जिस साल आप अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं उस 1 साल पहले आपका 78 डेज का एटलीस्ट आपका इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए SIC में। उस केस में आपको कैश कंपनसेशन दिया जाता है और 90 दिनों तक दिया जाता है। और इसमें जो है आपकी जो एवरेज डेली अर्निंग थी उसका 50%, मतलब उसका आधा दिया जाता है आपको 90 दिनों तक। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज RGSKY, ठीक है। इसमें देखते हैं इन केस ऑफ इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, रिट्रेंचमेंट और परमानेंट इनवैलिडिटी ड्यू टू नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी and the contribution in respect of him has been payable for a minimum of 2 years prior to the loss of employment। मतलब कि अगर आपको कंपनी से बैठा दिया गया है, निकाल दिया गया है, या फिर आपका कंपनी के बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया जो कि नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी था, उसमें आपका कुछ ऐसा लॉस हो गया कि अब आप काम नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपको ये दिया जाता है अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और ये आपको लगभग 24 महीने या फिर 2 साल, वही कह सकते हैं 2 साल तक दिया जाता है। और इसमें आपको 50% ऑफ एवरेज डेली वेजेस फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स एंड 25 फॉर लास्ट 12 मंथ्स। मतलब पहले साल में आपको 50% आपके डेली वेजेस का दिया जाएगा और उसके अगले 12 महीने जो है आपको 25% दिया जाएगा। देन कन्फाइनमेंट, एन इंश्योर्ड वुमेन और एन इंश्योर्ड पर्सन in respect of his wife is eligible if confinement occurs at a place where necessary medical facilities under ESI schemes are not available। ठीक है, तो कन्फाइनमेंट के केस में अगर कोई औरत है जो कि इंश्योर्ड है या फिर उसका पति है जो कि इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी वाइफ कन्फाइनमेंट कर रही है, तो उस केस में और जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ ESI की अवेलेबल नहीं है, उस केस में ही ये बेनिफिट दिया जाता है। और ये अप टू 2 कन्फाइनमेंट्स ओनली दिया जाता है और 7500 पर केस। पहले कन्फाइनमेंट पे भी 7500 है और सेकंड पे भी 7500 है। उसके बाद अगर तीसरा कुछ कन्फाइनमेंट होता है तो उसमें नहीं होगा। देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं इंश्योरेबल उसी दिन से ये अप्लीकेबल होता है। फॉर defraying expenses on the funeral of an insured person, ठीक है।
ये आपका क्रियाक्रम जो होता है, अंतिम क्रियाक्रम, उसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। और एक्चुअल एक्सपेंसेस अप टू द मैक्सिमम ऑफ 50,000, मतलब 15,000 तक आपको पैसे मिलते हैं इसमें ESIC से। देन वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर आपका किसी एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान फिजिकल डिसेबलमेंट हो गया है, कुछ टूट फूट गया है, तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। वो कब तक दिए जाएंगे? एज लॉन्ग एज वोकेशनल ट्रेनिंग लास्ट, जब तक वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। देन इसमें आपको एक्चुअल फ़ी चार्ज और 123 पर डे विच एवर इज़ हायर, मतलब ठीक है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इसका भी सेम कंडीशन है वोकेशनल ट्रेनिंग वाला ही। देन एज लॉन्ग एज a person is admitted in an artificial limb center, 100% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस आपको दिए जाएंगे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन स्किल डेवलपमेंट स्कीम इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अंडर RGSKY फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और ऐसे कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।